Good morning, student. So in previous video we already completed up to cone, volume and surface area of the cone. So today we are going to start the surface area and volume of the sphere. Surface area and volume of the sphere. Sphere and hemisphere. Hemisphere. So what is meant by the sphere and what is meant by the hemisphere? So that I explain first. Here I draw the diagram. So this is of your circle. But this circle is now become a sphere. You know that the balls, whichever the balls you play, tennis ball, cricket ball, football, volleyball, basketball, all these balls are the examples of the sphere. All the examples are the sphere. Sphere means this is the point, and from this point the set of all points which are at equidistance from this fixed point. Now this is of your fixed point. We consider the set of all points which is at 5 centimeter distance or 50 centimeter distance. So 50 centimeter means this point, this point, this point also, this point also, this point also, and this point. Means we consider the space. But in a circle, for the definition of the circle, in the circle chapter, we already explained the definition of the circle. Circle is the plane figure. Both the definitions are same. But in circle, in a given plane is there, this statement is there, and in the sphere, in a space. So in a space, the point which are equidistant from the fixed point is called as a sphere. Means एक fixed point से equal distance पे होने वाले space में जितने भी point है, ये सभी point का set, इसका मतलब हो गया sphere. अब ये स्फीयर को मैंने कट कर दिया बीच से. मींस एक बॉल है, ये बॉल को मैंने एक बीच से कट कर दिया, तो वहां पे अब ये स्फीयर जो दिख रहा है आपको, स्फीयर में एक ही सरफेस है, तो उसको या तो कर्व सरफेस बोलो या फिर सरफेस एरिया बोलो, व्हाटएवर. मगर यदि मैं बीच से कट करता हूं तो मुझे दिखता है एप्पल का आधा पार्ट दिखता है, या फिर डग्गा जो चाटी रहती, चाटी और जो डग्गा रहता तबले में, वो दिखता है मुझे. मींस वहां पे दो सरफेस आ गए. एक आ गया नीचे वाला जो कि कर्व सरफेस है, और ऊपर में जिसको हम बजाते हैं वो बन गया आपका सरफेस, प्लेन सरफेस, एंड दैट इज द सर्कुलर फेस. तो दूसरा जो है, यानी इसको मैं यहां से कट कर रहा हूं, अलोंग द डायमीटर कट कर रहा हूं, तो मुझे इस तरह का डायग्राम दिखाई दे रहा हो, इस तरह से. So this is called as a hemisphere. Okay. So this is of your sphere. That is O is the center of the circle. That is therefore this is the radius. O is the center, and this is of your A. So this is the radius. Okay. So here only one dimension is present. That is radius. केवल radius ही है यहाँ पे. तो sphere का definition ध्यान में आ गया. Sphere is the set of all points which are at fixed distance from the fixed point in the given space is called as a sphere. And if the sphere is cut along the diameter, it becomes the two hemisphere. Okay. Now the surface area of the sphere, surface area of sphere is equals to 4 pi r square. ध्यान में रखेंगे, यानी 4 सर्कल का एरिया मिलके एक स्फीयर का एरिया बनता है. ओके. 4 सर्कल को यदि एरिया को एडिशन करेंगे तो एक स्फीयर का एरिया बनेगा सरफेस एरिया. इसको मैं कर्व सरफेस एरिया भी बोल सकता हूं. आइदर वी कॉल्ड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर और वी कॉल्ड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर. दोनों भी बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि एक ही सरफेस है, दूसरा है ही. नाउ वॉल्यूम. So volume of sphere is equals to 4 by 3 pi r cube. दोनों फॉर्मूले को ध्यान में रखेंगे.
अब यहां पे मैंने इसको कट करके हेमिस्फीयर बनाया, दैट इज कॉल्ड एज अ हेमिस्फीयर। इसको हेमिस्फीयर कहेंगे। हेमिस्फीयर में दो सरफेस है, एक है कर्व सरफेस और दूसरा सर्कुलर बेस। मैंने बताया एप्पल का आधा कटा हुआ पार्ट या फिर पोटैटो का आधा कटा हुआ पार्ट, सो दैट इज द हेमिस्फीयर। तो हियर कर्व सरफेस, अब यहां पे सरफेस एरिया नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें दो सरफेसेस आ गए, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तब टोटल सरफेस बनेगा, मगर यहां पे कर्व सरफेस और सर्कुलर बेस है, इसलिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू 2 पाई r स्क्वायर, इसका आधा। देखो ना, आप क्या करते हैं, पूरे सर्कल को, पूरे स्फीयर को कट करेंगे तो आधा उधर जाएगा और आधा इधर आएगा। ओके, अब इसका जो बेस है यानी जो सर्कुलर फेस है, इसका ये जो दिखता है सर्कल जैसे, तो उसका एरिया हो गया 2 पाई r स्क्वायर हो गया, ओनली पाई r स्क्वायर। सो देयरफॉर इट इज टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 2 पाई r स्क्वायर, मींस ये कर्व सरफेस प्लस ये जो सर्कुलर बेस है इसका पाई r स्क्वायर, तो ये बनेगा आपका 3 पाई r स्क्वायर। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, मींस यहां पे टोटल सरफेस नहीं रहेगा क्योंकि एक ही सरफेस है, इसीलिए 4 पाई r स्क्वायर। इसका वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई r क्यूब, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, इसमें दो सरफेसेस है, एक है कर्व सरफेस और दूसरा सर्कुलर बेस। तो कर्व सरफेस हो गया 2 पाई r स्क्वायर, इसका आधा हो गया, और बेस का है पाई r स्क्वायर, तो इसीलिए टोटल सरफेस बन गया 3 पाई r स्क्वायर। और इसका जो वॉल्यूम रहेगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू 2/3 पाई r क्यूब। कैसे आया ये? हाफ ऑफ 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब का आधा, मींस एक स्फीयर में जितना एरिया, जितना वॉल्यूम रहेगा उसका आधा वॉल्यूम किसमें रहेगा? हेमिस्फीयर में रहेगा। अंडरस्टूड? So in this way, these are the formulas for the sphere and the hemisphere. Now we will take some example from exercise say 13.4 और 5 maybe 13.4 होगा या फिर 13.5। पहला एक्सरसाइज देखा हमने इसका क्यूबॉइड का, दूसरा एक्सरसाइज सिलेंडर, तीसरा कोन, और ये आ गया चौथा। ओके, तो यहां पे एक्सरसाइज है 13.4, एक्सरसाइज 13.4। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 नहीं लिया मैंने, क्यों? क्योंकि वहां पे रेडियस दिया है, डायमीटर दिया है, आपको क्या निकालना है? सरफेस एरिया निकालना है, तो आप निकाल सकते हो। तो ये थोड़ा सा अलग प्रॉब्लम थे, तीनों प्रॉब्लम, इसलिए मैंने ये तीनों एग्जांपल लिए। The first example, radius of the circular balloon increase from 7 centimeter to 14 centimeter। यानी दो बलून है, दोनों एक ही बलून है, एक बलून में पहले हमने हवा भरी, एयर भरने के बाद उसका रेडियस बनता है 7 सेंटीमीटर, तो यहां पे R1 हो गया, उसका स्टार्टिंग में R1 हो गया 7 सेंटीमीटर। अब हमने क्या किया, उसमें हवा भरते ही गए, तो उसका ये बढ़ेगा ना, सरफेसेस बढ़ेगी कि नहीं, बड़ा होगा कि नहीं? वो मींस पहले छोटा था, अभी वो क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब बड़ा हो गया तो उसका रेडियस बन गया 14 सेंटीमीटर। R2 इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। बलून एक ही है, पहले हमने कम हवा भरी तो 7 सेंटीमीटर का रेडियस दिखाई दिया, अब हमने उसमें और हवा भरते गए तो रेडियस बन गया यहाँ पे 14 सेंटीमीटर का। ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बलून। ये दोनों के सरफेस एरिया निकाल के उसका रेशियो फाइंड आउट करना है, तो यहां पे रेशियो फाइंड आउट करेंगे हम लोग। नाउ सरफेस एरिया ऑफ बलून, सरफेस एरिया ऑफ, पहला बलून ले लेते हैं, यस, बलून 1 अपॉन सरफेस एरिया ऑफ बलून 2, बलून 2, दोनों बलून तो सेम ही है, मगर हमने क्या किया, ये पहला वाला मींस जब हवा कम भरी उसका, और ये दूसरा जब हवा ज्यादा भरी उसका। फॉर्मूला क्या है सरफेस एरिया का? 4 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय हियर 4 पाई r स्क्वायर। तो यहां पे मैंने इसको R1 लिया था और इसको लिया था R2,
तो यहाँ पे 4 कैंसिल हो गया, पाई भी कैंसिल हो गया, बचेगा आपका r1 स्क्वायर अपॉन r2 का स्क्वायर। r1 है आपके पास में 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 14। ये इजी हो गया। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते थे, कैसे? पहले हमने सरफेस एरिया ऑफ द बलून पहले निकाला, उसके बाद में सरफेस एरिया ऑफ द बलून सेकंड का निकाला, फिर दोनों का रेशियो लिया हमने, वैसा भी कर सकते हैं, बट दिस इज अगेन करेक्ट। ओके, ये इजी हो गया। 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, तो ये आ गया आपका 1 अपॉन 2 2 जा 4। तो योर आंसर इज 1:4। अंडरस्टूड? नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल, द हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास, यानी ब्रास से बनाया है हेमिस्फेरिकल बाउल। ये आ गया आपका हेमिस्फेरिकल बाउल। ओके, अब इसमें जो दिया है वो क्या दिया है वो चेक कर लेंगे। पहले जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके बारे में लिखेंगे, सोचेंगे। द हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ ब्रास, ब्रास से बना है, हैज इनर डायमीटर, डायमीटर दिया है इनर डायमीटर, यानी डी दिया है 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द टीन प्लेटिंग ऑन द इनसाइड, मींस टीन का प्लेटिंग करना है, इनसाइड में हमको टीन का प्लेटिंग करना है, मींस टीन लगानी है आपको। तो यहां पे टीन का प्लेटिंग करना है ऑन द इनसाइड ऑफ द रे एट द रेट ऑफ ₹16 पर सेंटीमीटर पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मींस 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 16 रुपीज लगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए नहीं। तो जो एरिया आएगा उसको पहले 100 से डिवाइड कर लेंगे और उसके बाद ही 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो यहां पे क्या करना है इसका, ये बाउल हो गया, डायमीटर दिया है तो रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस इज इक्वल टू 10.5 डिवाइडेड बाय 2, इट मींस दैट 5.25 सेंटीमीटर। ओके, ये आ गया, करेक्ट है क्या? देख लेते, 2 5 are 10 बराबर है 2 2 are 4 and 2 5 are 10, करेक्ट है। अब हमको चाहिए इनर कर्व सरफेस एरिया, सो इनर कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 2 पाई r स्क्वायर, क्योंकि स्फीयर का आधा, यहां पे डाल देंगे वैल्यू 2 पाई 22/7 ले लो, या फिर 3.14 ले लो, 22/7 ले लिया, इनटू आर स्क्वायर। आर कितना है आपका, इतना दिया है, आर स्क्वायर दैट इज 10.5, इसको नल करते हुए 10.5 अपॉन 2 इंटू 10.5 अपॉन 2, ऐसा कर लिया हमने। ओके, समझ में? चलो सॉल्व करेंगे हम लोग। ये कैंसिल हो गया, समझ के चलो, या फिर पहले इसको डेसिमल को हटा लेंगे। 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 105 डिवाइडेड बाय 20, ध्यान में आ गया ना, पहले भी किया था हमने, 105 डिवाइडेड बाय 20, ये हो गया। 2 1 से 2, 2 10 से 20, गॉट इट। और यहां पे 11 और यहां पे 10, गॉट इट। सो 11 इंटू 105 इंटू 105 डिवाइडेड बाय, ये आ गया आपका 100 इंटू 7, गॉट इट। मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं आप लोग, करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 105 इंटू 105 किया हमने, 5 5 से 25, 5 कैरी 2, 5 0 से 0, 2 दिया हमने, और 5 1 से 5, उसके बाद में एक 0 देके और 0 हो गए, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब यहाँ पे 2 0 देना पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 से 5 0, और यहाँ पे 1 1 से 1, ये आ गया आपका 5 2 5 + 5 10, 0 कैरी 1 11। ओके, तो ये आ गया आपका इंटू 11 किया, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम लोग, इसीलिए यस। 11 5 जा 55 कैरी 5, 11 2 जा 22, 7 2 कैरी, यहाँ पे 2 आ गया, 11 0 जा 0 मींस 2 आ गया, 11 1 जा 11, 1 कैरी 1, 11 1 जा 11 + 1 12, ये आ गया आपका 1 2 1 2 7 5, सॉरी 1 2 1 2 7 5 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 100, डेसिमल में दे देंगे हम लोग, तो यहाँ पे 1212.75 डिवाइडेड बाय 7। ओके, तो ये आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब हमको क्या चाहिए इसमें, हमें चाहिए कॉस्ट। सो कॉस्ट इज इक्वल्स टू एरिया इंटू रेट, एरिया इंटू रेट। एरिया कितना इसमें जो हमने फाइंड आउट किया वो एरिया हो गया, यानी 1212.75 डिवाइडेड बाई 7 इंटू पर 100 बोला है तो 16 डिवाइडेड बाई 100। इसका कैलकुलेशन करके आप इसका रुपीस में फाइंड आउट कर सकते हैं। अंडरस्टूड? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सी how can we solve this question, that we will understand. The diameter of the moon is 1/4 of the diameter of the earth. मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर से 1/4 है। ये हो गया आपका अर्थ, सॉरी मून, क्योंकि मून तो छोटा ही रहेगा अर्थ से, सब प्लैनेट है तो उसका, ये हो गया उसका अर्थ, ये हो गया अर्थ। ओके, अब मून का जो डायमीटर है ये कितना है, अर्थ के डायमीटर से 1/4, डायमीटर ऑफ मून। तो यहां पे डी एम ले लेता हूं और यहां पे डी अर्थ ले लिया। ओके, सो द डायमीटर ऑफ द मून, अंडरस्टूड करो, ये डायमीटर ऑफ द मून इज 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। यहां पे हम लोग फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो सबसे पहले कंसीडर करते हैं हम लोग, लेट डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल्स टू x मीटर ले लेते हैं, मीटर ले लो क्योंकि सेंटीमीटर में नहीं रहेगा, मीटर में रहेगा या फिर किलोमीटर में रहेगा, व्हाटएवर। डायमीटर ऑफ द मून यहां पे पूरा लिख देता हूं, डायमीटर ऑफ मून being x meter. Okay, therefore radius of the moon is equals to, मून का रेडियस इज इक्वल्स टू x अपॉन 2, डायमीटर का आधा हो गया, डायमीटर का आधा। अब मून का जो डायमीटर है अपना कहीं तो भी गलत हुआ, क्योंकि यहां पे बोला है मून का डायमीटर अर्थ से 1/4 है, तो हमें डायमीटर ऑफ द मून न लेते हुए अर्थ का लेना पड़ेगा, क्योंकि मून डिपेंड करता है अर्थ पे। तो अर्थ को कंसीडर किया, अर्थ का कंसीडर किया, तो यहां पे डायमीटर ऑफ द अर्थ इज इक्वल्स टू x, देयरफॉर रेडियस ऑफ द अर्थ इज इक्वल्स टू, कैपिटल R मान रहा हूं यहां पे, रेडियस ऑफ द अर्थ इज इक्वल्स टू x अपॉन 2 मीटर। देयरफॉर डायमीटर ऑफ मून, मून का डायमीटर निकालेंगे हम लोग, ये कितना हो गया 1/4 ऑफ x, क्योंकि डायमीटर ऑफ द अर्थ है x, तो ये हो गया 1/4 हो गया। तो रेडियस निकाल लेंगे इसका, देयरफॉर x अपॉन 2 आ गया, ये सॉरी x अपॉन 4, देयरफॉर रेडियस ऑफ मून is equals to 1/2 into x by 4. कैसे? It is the half of the diameter. Okay, so that is of equals to x upon 8. Now what we have to find here, find the ratio of their surface area. तो यहां पे ऊपर में लेंगे diameter of the moon means surface area of moon divided by surface area of earth is equals to, मून का सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि अर्थ बड़ा है तो हमने उसका रेडियस लिया r, यहां पे मून ले लेता हूं मैं और यहां पे अर्थ ले लिया, ये 4 कैंसिल, पाई कैंसिल, वैल्यू डाल देंगे हम लोग, r m का स्क्वायर, r रेडियस ऑफ द मून कितना है 8, सॉरी x अपॉन 8, x अपॉन 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अर्थ का रेडियस कितना लिया है हमने x अपॉन 2 का स्क्वायर, x अपॉन 2 और उसका स्क्वायर। चलो सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 64, 8 8 से 64 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर अपॉन 4, सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, x स्क्वायर अपॉन 64 इंटू 4 अपॉन x स्क्वायर, x स्क्वायर गेट कैंसिल,
4 का डिवीजन होता है शायद से, देंगे हम लोग। 4 1 जा 4, ओके, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 बचेगा, 4 6 जा 24, बराबर है। So that is equals to 1/16. Therefore the ratio is 1:16. So in this way you can complete the exercise of exercise 13.4. Okay.